إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ भटक रहे हो? इस तरह वो लोग भटक रहे थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी सूरतें बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। बस अल्लाह परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। वो ज़िंदा है जिसे मौत नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इसकी इबादत को खालिस कर कर इसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही को सदावार है जो तमाम जहां का परवरदिगार है। बेशक अल्लाह का कलाम सच्चा है। Jazakumullahu khair. A philosopher once said, if your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, and become more, then you are an excellent leader. With these words, I would like to call the head boy of SSTPSR, Nasibullah, to welcome and introduce the guest of today's event, Sir Zakir Sheikh. Assalamu alaikum and good morning to everybody. Advancement in technology has proved man the supreme creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and by the virtue of his commitment to the utilization of his intellect is well observed in the form of virtually connected global village. Ladies and gentlemen, I welcome you all in the 7th Regional IT Expo webinar organized by SST Public School, Rashidabad. We all know that the year 2019 has been a challenge for the entire world on account of COVID-19 pandemic, and its impacts on education sector caused a massive shock for the policymakers. At this point, I find myself a fortunate young man on being a part of SST Public School, Rashidabad, an institution which is standing so proudly on the rich land of interior Sindh, yet expresses a keen interest in the vast array of contemporary trends of art, literature, science, and technology, even in face of hard times. The most exciting fact about this honor is that while providing the most effective learning podiums for young students, our school does not forget to bring in loop
the regional institutions as well from across the country. In the end, I wish all the participants of today's event best of luck. Now, let me introduce our today's guest speaker, Engineer Muhammad Zakir Sheikh. Engineer Muhammad Zakir Sheikh is currently working as a lecturer and business development manager at National Center for Robotics and Automation (CMS) at Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. He is a PhD scholar who is working on reducing railway accidents in Pakistan and at international level. He is working as global ambassador of QS, World Merit, community member of Nexus and UNITE 2030. He has played key role in taking sustainable development goals at regional, national and international level as well. He has represented Pakistan and Mehran University at United Nations of HQ, New York, and has also won an international competition of I am a mover, shaker and a change maker by QS World Merit. Besides being passionate teacher and teaching all students without charges, he has also developed numerous great and innovative projects to solve the various problems of the society. He has been declared as the Star Laureate 2011 for the outstanding achievements in the field of science technology by South Asian publications. He has broken the historic record of IEEP student seminar by getting 2 gold medals in 27 IEEP All Pakistan Students Seminar for getting 2 positions. First position to in one research paper and second position in the other research paper. He has authored several research publications in top-notch national and international journals. Now, I call our worthy guest speaker, Engineer Muhammad Zakir Sheikh, to come on stage and start his session. Sir, please. I begin with the name of Almighty Allah, who is the sole possessor of all the powers. Honorable Principal, worthy Vice Principal, respected faculty members, dearest students, Assalamu alaikum. I guess I am visible. Am I? Obviously I am visible, audible as well. सुन सकते हैं मुझे आवाज़ clear है? Thank you. So I have been already introduced. So this is we'll be moving on for our presentation today. Before starting my presentation, I would like to give you one simple example. Have you ever heard about bamboo tree? बांस का दरख्त, वही इंग्लिश उर्दू में बांस का दरख्त हम बोलते हैं. तो कोई बता सकता है कि बांस का दरख्त कितने अरसे में ग्रो करता है? एनीवन?
अब आवाज़ आ रही है, कोई कह रहा है 10 दिन, कोई महीना, 6 महीने, 8 दिन। खैर, ये ट्री डजंट ग्रो इन फ्यू डेज, इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 years टू ग्रो। और 5 years जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। वाई? बिकॉज वो अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग करता है। रूट्स, आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होगी तो आप सक्सेसफुल होंगे। 5 साल बांस का दरख्त ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन जब ज़मीन से बाहर आता है तो 90 feet इन 6 weeks, मतलब 6 हफ्तों में वो 90 feet का हो जाता है। तो आप देखें कि क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग थी। 5 साल उसने लगाए रूट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और 6 हफ्ते में वो 90 feet ग्रो कर गया। तो हमेशा अच्छे काम के लिए, सक्सेस के लिए टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में हमें शॉर्टकट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि क्विक रिजल्ट्स आ जाएं, वेरी सून, मतलब आप जल्दी हमें शॉर्टकट्स मिल जाएं, जल्दी रिजल्ट्स हमें मिल जाएं। मतलब हम मासिव आउटकम्स, एफर्ट हम चाहते हैं थोड़ा हो, इनपुट थोड़ा हो, आउटकम जल्दी भी आए और बहुत ज़्यादा भी आए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, सिंस इट इज़ रीजनल IT वेबिनार, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये टोटल 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। बेसिकली मेन मकसद, मेन एम ऑफ दिस UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। इस दुनिया को बेहतर बनाना है, ये गोल्स हैं। आप मिसाल फोकस करें, नंबर 1 नो पॉवर्टी, कि गुर्बत दुनिया से ख़त्म करनी है। लेट सपोज दूसरा आ जाए ज़ीरो हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं सोए। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वी कैन टॉक ऑन दिस सम अदर टाइम इन डिटेल। साथ ही साथ मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि QS वर्ल्ड मेरिट, it since I am working as a global ambassador of QS World Merit as well, so basically its mandate is to tackle United Nations Sustainable Development Goals। ये टारगेट्स जो हैं इनको पूरा करना है और क्रिएट एन इम्पैक्ट। आपने अपनी लाइफ से लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। एक जुमले में बता दूं कि ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे दूसरों की ज़िंदगी पे, तो आपकी ज़िंदगी बामकसद है, मतलब यूज़लेस है, अगर आपने दूसरों के लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। देयर आर सो मैनी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज सिंस यू ऑल आर यंगस्टर्स। मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि आप विज़िट करें वेबसाइट पे, ये मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन विज़िट अब्रॉड, इवन यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। मैं खुद इस प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर तक पहुँचा हूँ न्यूयॉर्क में। सो यू ऑल कैन अप्लाई, दिस स्कूल कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम एज वेल। नाउ मूविंग ऑन। अब देखें, इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ यू नीड पेशेंस। जैसे कि अभी हमने रूट्स की हमने बात की, तो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू विल फाइंड अ वे। इफ़ यू डोंट वांट टू अचीव समथिंग, आप कहेंगे, कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे, कोई बहाना देंगे। ये सिंपल एक किताब है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की किताब है, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की किताब। ये कहता है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी आदत, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा कामयाब बना सकती हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? सब सुन सकते हैं मुझे बैक पे? ठीक। अच्छा, आप देखें ये 4 लॉज ऑफ हैबिट्स, आप आदत कैसे बनाएंगे। एक तो है कि अच्छी आदतें बनानी है, दूसरा ये है कि बुरी आदतों से बचना है। अब देखें, फर्स्ट हम लेते हैं बिल्डिंग गुड हैबिट्स। ये कहता है मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। मिसाल देते हैं हम
किसी आप में से किसी बंदे का लेट सपोज फैटी है, मतलब थोड़ा मोटा हो गया, लेट सपोज, जस्ट एक नॉर्मल मिसाल देता हूँ। अब एक्सरसाइज करनी है, अब एक्सरसाइज करना आसान तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जिम जाना होगा, भागना होगा, रनिंग करनी होगी। अब हर कोई तो भाग नहीं सकेगा, कोई भागेगा भी तो स्लो भाग सकेगा, 500 मीटर 200 मीटर। अब एक्सरसाइज इटसेल्फ इज़ अ टफ प्रोसेस, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब क्या करें? आप कर सकते हैं कि आप एक कंपनी ढूंढें, ऐसे फ्रेंड्स ढूंढें जो कि एक्सरसाइज कर रहे हों, जो कि रनिंग कर रहे हों। तो होगा क्या कि उनकी कंपनी के साथ बैठ के आप भी उनको देख के मूव कर रहे होंगे, आप भी उनको देख के एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अल्टीमेटली आप में वो अट्रैक्शन डेवलप होगी। सिमिलरली ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, बुरी आदत को कैसे तोड़ना है। अब ये मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ एक दोस्त का, या सिंपल एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और छोड़ देते हैं स्मोकिंग। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने स्मोकिंग कैसे छोड़ी, तो वो कहेंगे बड़ा तकलीफ दे मरहला था। लेकिन बाज़ औक़ात आपको वो लोग भी मिलेंगे, वो कहेंगे हमने बड़ी आसानी से स्मोकिंग छोड़ दी। कैसे? उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं थी। दूसरा, अगर आप सोचें कि मेक इट अनअट्रैक्टिव मेक इट हार्ड, भाई मेरे पैसे खर्च होंगे, मैं अगर रोज़ सिगरेट का डब्बा खरीदूंगा तो मेरे पैसे खर्च होंगे, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अट्रैक्टिव बना रहा हूँ, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, हार्ड बना रहे हैं इस प्रोसेस को। तो मकसद कहने का ये है कि बुरी आदत ख़त्म हो सकती है, अच्छी आदत इजीली डेवलप हो सकती है। सिंपल तरीके हैं। ये एक हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इफेक्ट। ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी किताब है। इसके लिए मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा। दुनिया में 7 अजूबे आप सबको पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया में कोई 8वां अजूबा है तो वो है कंपाउंड इफेक्ट। अब ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है? बेसिकली यही चीज़ें हैं कि आप स्लोली ग्रेजुअली छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ा रिजल्ट अचीव करें। अब वो कहता है कि नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से माइनस करें। अब इसमें एक मिसाल था इस किताब में, एक्सरसाइज एग्जाम्पल, डेली और वीकली। अब देखें, छोटी छोटी आदतें आपको डेली करनी होगी। एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे। अब ये नहीं है कि एक हफ्ते में एक्सरसाइज हो गई, लेट सपोज संडे को एक्सरसाइज की 2 घंटे, फिर एक हफ्ता नहीं की, या महीने में मैंने 4 घंटे एक दिन कर दी और पूरा महीना नहीं की, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली, बेशक 1% इंप्रूवमेंट हो, लेकिन डेली बेसिस पे 1% इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब आप एक छोटी सी चीज अगर नोट करें, अगर 1% इंप्रूवमेंट डेली आ रही है, अगर 1% इंप्रूवमेंट डेली, तो आप देखें ग्राफ, इंप्रूवमेंट का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है। टाइम लग रहा है, शुरू में इतना ऊपर नहीं जा रहा रिजल्ट, आराम आराम से आप सक्सेस की लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ऊपर चले जाते हैं। और अगर आप 1% इंप्रूव नहीं कर रहे, यानी कि स्टैटिक है, ठीक है। और आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आईटी वर्ल्ड में, अगर आप स्टैटिक हैं यानी कि आप डाउन जा रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि 1% इंप्रूवमेंट अगर आप डेली कर रहे हैं तो देखें रिजल्ट कितना प्रोडक्टिव है। ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे अच्छी चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, ऐसे ही बुरी चीज़ें भी ऐसे ही नहीं कि अचानक हो जाती हैं। हार्ट अटैक का आप मिसाल ले लें, हार्ट अटैक कभी भी ऐसे नहीं है कि अचानक हो जाए। कभी भी हार्ट अटैक आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया उसको, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। ये जो इतने बड़े बड़े चीज़ी बर्गर्स हम मार्केट में खाते हैं, ये बेसिकली हार्ट अटैक को आपको डेवलप कर रहा है। ये जो मतलब आप देखें ना, ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, जो अभी हम एक्सरसाइज पे, मैंने अभी 10 मिनट एक्सरसाइज पे बात की, तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, तो आप देखें कितना मोटा हो गया है, मतलब पेट निकल आया। अब ये आप देखें इसी वजह से हार्ट अटैक। तो अभी हंसने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मकसद कहने का है कि आप देखें कि हार्ट अटैक ऐसे नहीं कि अचानक होगा, ये एक प्रोसेस है, डेवलप हो रहा है।
ये एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेटेंट पोटेंशियल। आई डोंट नो, ये शायद आप लोगों में से किसी ने सुना होगा या नहीं। अब आप देखें तो हम क्या चाहते हैं कि हम जैसे भी कोई भी काम शुरू करें तो फ़ौरन रिजल्ट आ जाए, फ़ौरन। अब होता क्या है कि रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है। अब मिसाल है, लेट सपोज मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन लूँ। एक छोटा सा मिसाल है, फ़र्स्ट पोजीशन लूँ। अब मैं महीना पढ़ के मैं हिम्मत हार जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझसे नहीं होगा। तो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि एक मायूसी की चीज़ हमारे जहन में चल रही होती है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा, मेरे लिए नामुमकिन है। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये डिसअपॉइंटमेंट के नाम से एक लेक भी है, एक झील भी है ऑस्ट्रेलिया में, लेक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कहने का मकसद ये है कि लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको कंटिन्यू करें प्रोसेस को, तो आगे जाके आप देखें रिजल्ट अचीव हो रहा है। ये नहीं कि सडन आपको अचीवमेंट हो जाए कि आज 2 दिन पढ़ा और फर्स्ट पोजीशन आए, ऐसे नहीं हो सकता। टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आएगा, टाइम लगेगा। अब बाज़ों का ये होता है कि रिजल्ट कल आना होता है, हम एक दिन पहले हिम्मत हार बैठते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार बस हो गई, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा है, मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर हमने एक दिन ज़्यादा किया होता और अगले दिन रिजल्ट आता। अच्छा, अब ये बड़ा एक अच्छा मिसाल है, चूँकि आईटी का एक वो आप लोगों में से शायद काफ़ी लोगों ने सुना होगा। अब देखें ब्रिटिश साइकिलिंग ना, इंग्लैंड में अगर आप लोगों को पता हो तो वहाँ पे साइकिलिंग बहुत होती है। जो गोरे हैं वो मतलब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल बाकायदा पाथ्स बने हुए हैं। साइकिल का एक अलग पाथ है, चलने का अलग पाथ है, और उसके लिए आपको बाकायदा सिग्नल लगे होंगे कि भाई अब साइकिल चल सकती है, अब बंदा पैदल चल सकता है, गाड़ी तो अपनी जगह पे। अब यहाँ पे ये बड़ा एग्जाम्पल, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए 95 ईयर्स में ब्रिटिश ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल लिया, 95। हालांकि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। जैसे हम यहाँ पे क्रिकेट को, हॉकी को इतना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे लेकिन 95 ईयर्स में उन्होंने एक गोल्ड मेडल लिया। और साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है टूर डी फ्रांस। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, तो साइकिलिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है टूर डी फ्रांस। कोई भी उसमें उन्होंने मतलब एक दफ़ा भी नहीं जीते थे। अब ये एक बंदा आता है, एक बंदा, इसका नाम है डेव ब्रेल्सफोर्ड। एक बंदा आता है ब्रिटिश साइकिलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये करता क्या है, गौर से सुनिएगा, करता क्या है। ये देखता है कि यार बजाय इसके कि मैं ऑल ऑफ सडन कोई मासिव मतलब बड़ी चेंज लाऊं, ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करता है। मिसाल देता हूँ, साइकिल का हैंडल है उसको 1% इम्प्रूव करता है। साइकिल की सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको 1% इम्प्रूव करता है। साइकिल का टायर उसको 1% इम्प्रूव करता है। बाईसाइकिल की जो बॉडी है उसको 1%, यहाँ तक कि साइकिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ को 1% इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि ये भी करता है कि जो साइकिल चला रहे हैं वो एक्सरसाइज करें, बेशक 1 किलोमीटर भागें लेकिन डेली भागें। 1% सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है। होता क्या है, 5 साल बाद 60% गोल्ड मेडल्स तमाम कॉम्पिटिशन्स में ब्रिटिशर्स लेते हैं। 2012 में 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। सेम ईयर वो टूर डी फ्रांस भी जीत जाते हैं। बताने का मकसद ये था कि वहाँ पर वो 95 ईयर्स में एक गोल्ड मेडल ले रहे हैं और यहाँ पर 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और टूर डी फ्रांस भी जीत रहे हैं। 1% इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर किया, उसका रिजल्ट देखें कितना बड़ा है। टाइम लगा, 5 साल इसमें भी लगे। जो हम अभी पढ़ के आए थे कि हर सक्सेस के लिए 5 साल लगेंगे, और यहाँ पे भी टाइम लगा। सर आवाज़ क्लियर है? आई होप। अच्छा, ये जेफ बेजोस के बारे में आप किसी ने सुना है? जेफ बेजोस कोई ये अभी दुनिया का अमीर तरीन आदमी, ये मौजूदा मतलब टुडेज़ वर्ल्ड का अमीर तरीन आदमी है। चूँकि ये आईटी का रीजनल वेबिनार है, उस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि ये जेफ बेजोस बेसिकली कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट था।
1994 में इसने रियलाइज़ किया कि इंटरनेट जो है 2300% के हिसाब से एनुअली बढ़ रही है। अब देखें, एक चीज़ अगर 5% बढ़ती है हम कहते हैं यार बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, 10% बढ़ती है हम कहते हैं बहुत बड़ी बात हो गई। उसने उस वक्त रियलाइज़ किया कि 2300% के हिसाब से एक चीज़ बढ़ रही है, 2300% के हिसाब से एक चीज़ बढ़ रही है। उसने क्या किया, उसको बड़ी अच्छी जॉब थी, कंप्यूटर साइंस उसने ग्रेजुएट किया, बड़ी अच्छी उसको जॉब थी, बहुत अच्छा कमा रहा था, 9 बजे जॉब पे जाता था, 5 बजे वापस आ जाता था। लेकिन उसने कहा नहीं यार, ये लाइफ नहीं है, दिस इज़ नॉट द लाइफ, देयर इज़ नथिंग गुड। उसने कहा चेंज होनी चाहिए। उसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने कहा कि यार इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी आपकी तनख्वाह है, आप इतने ज़्यादा US डॉलर्स में आप कमा रहे हैं, आप ये जॉब ना छोड़ें। अच्छा, उसने जॉब छोड़ दी, उसको दूसरी जॉब भी नहीं मिली और वो स्ट्रेस में रहा, टेंशन में रहा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सेम कंपनी से जिससे उसने रिज़ाइन किया था, जॉब छोड़ी थी, उन्होंने उसको कहा कि भाई आप वापस आके ज्वाइन करें, आपको इतनी अच्छी जॉब है, आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप आ जाएं, आपको तनख्वाह भी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, आप वापस आ जाएं। इसने कहा नहीं। डिसीशन एक दफ़ा लिया है, वो कायदे आज़म की एक कोटेशन है ना कि डिसीशन सही हो या गलत हो, एक दफ़ा ले लिया है, उस पर फर्म रहें। अब अगर गलत डिसीशन है तो उसको सही करें। उसने, अब आप देखें, एक उसने अपनी कंपनी शुरू की कैडेबरा के नाम से। ये जो आजकल अमेज़ोन हम सुनते हैं, अमेज़ोन, ये बेसिकली इसका पुराना नाम था कैडेबरा। कैडेबरा इसका पुराना नाम था। उसने क्या किया, ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू कर दी। ऑनलाइन वेबसाइट एक बनाई, उस पर किताबें इसने बेचना शुरू कर दी। अब किताबें बेचना जब शुरू की तो आपको पता है किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स नहीं है ना, हमें पढ़ने की आदतें नहीं है। हम चाहते हैं कि बस 2-4 एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले 2-4 नोट्स, वो जो एक स्टूडेंट क्लास का मेहनत करता है वही फ़ोटोकॉपी करा के सब वही पढ़ते हैं और रिज़ल्ट आ जाता है। तो किताब पढ़ना तो आसान नहीं है। अब इसकी कंपनी नुकसान में जा रही थी। आप देखें 7 साल के तक इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 7 साल तक, कितनी बड़ी बात है। हम अगर आज कोई कारोबार करें, हम अगर आज कोई बिजनेस करें, 7 दिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो, हम बिजनेस बंद कर देते हैं। 7 महीने तो छोड़ दें, आजकल के आप दौर में देखें, 7 दिन अगर प्रॉफिट ना हो तो हम कहते हैं यार ये हमारा जो कारोबार है, हमारा बिजनेस है, फ्लॉप जा रहा है, हम बंद कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। 7 साल तक उसको $1 का प्रॉफिट नहीं हुआ, $1 का। आप कितनी बड़ी बात है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अब उसने, ये तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ऑनलाइन किताबें उसने बेचना शुरू की। 7 साल बाद उसको प्रॉफिट आना शुरू हुआ। आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अब आज क्या है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग है, अमेज़ॉन ऑडिबल है, किंडल डिवाइस है जिसमें आपने देखी होगी, जैसे आईपैड होती है ऐसे ही किंडल डिवाइस आती है जिसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं। उनका गो स्टोर है, अमेज़ॉन ऐप स्टोर है, अमेज़ॉन स्टूडियोज़ है, ब्लू ओरिगन। ये ब्लू ओरिगन, ये जो आपने सुना होगा, स्पेस पे जो गया नहीं था रिसेंटली, अभी 3-4 महीने ये गया भी था जेफ बेजोस ऊपर। इसने अपनी, मतलब देखें, एक बंदे ने जिसने सिर्फ एक वेबसाइट, अब आईटी की बात हो रही है यहाँ पे, एक वेबसाइट बनाई, उस बंदे ने इतनी चेंजिंग कर दी, इतनी रेवोल्यूशन कर दी कि वो स्पेस स्टेशन भी बना रहा है, स्पेस पे जा रहा है। अच्छा, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, सर आई वॉज रीडिंग समवेयर अबाउट हिम। इसका एक टारगेट था, ये कहता था कि मैं जब भी दुनिया में कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अब मैं, मतलब मेरी लाइफ का आज आखिरी दिन है या कल आखिरी दिन है, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, या कल आखिरी दिन है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मुझे ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए था, तो मैं वो करता हूँ। साथ ही साथ ये कहता है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कौन कौन से अपनी ज़िंदगी में गलत काम किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो आप देखें कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम हेयर। टाइम सिंपल इसकी दोबारा हम करते हैं कि 1980 में 16 साल की उम्र में समर जॉब कर रहा था मैकडोनल्ड्स पे। उसके बाद उसको कंप्यूटर साइंस की जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। एट द एज ऑफ 30 अमेज़ॉन लॉन्च करता है। 33 में वो मिलियनेयर बनता है।
At the age of 35 becomes billionaire. In 2000 he starts space company. At the age of 39 survived helicopter crash. अच्छा, ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश इसने सरवाइव किया तब भी इसको लोगों ने कहा कि यार ये जो तुम काम कर रहे हो देखो तुम्हारी लाइफ खतरे में। बड़ी एक कंट्रोवर्सी बना दी ना कि तुम्हें मारने की कोशिश की गई है, या मतलब मकसद कहने का है उसने उन चीज़ों नेगेटिव थॉट्स को निकाल दिया। वो अभी हमने पढ़ा था ना, रिमूव नेगेटिव पीपल, पॉजिटिव थिंकिंग। जो 2013 में 49 की एज में वो वॉशिंगटन पोस्ट बाय करता है। 56 पे वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 बिलियन मैन, दुनिया का पहला आदमी और मौजूदा दुनिया का अमीर तरीन आदमी। देखें अभी बिल गेट्स अमीर तरीन नहीं है, नाउ जेफ बेजोस इज द, आप समझे कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आईटी, बात हो रही है आईटी की। इवन बिल गेट्स का भी अगर मिसाल लें तो बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट। आईटी, अब आईटी इन सोसाइटी, अब देखें एवरीवेयर, हर जगह आप देखें आईटी के बगैर आपका गुजारा नहीं है आजकल के दौर में। अब ख्वाह वो कन्वर्जेशन हो, ईमेल हो, एसएमएस हो, एंटरटेनमेंट में देख लें, डे टू डे लिविंग में एयरलाइन टिकट हम परचेज कर रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, हर जगह आईटी। बैंक एप्लीकेशन के ज़रिए हर जगह में आईटी है, आईटी के बगैर गुजारा नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर वेबसाइट हो गई, कॉल सेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, मतलब एवरीवेयर, बिजनेस, तमाम चीज़ों में। दूसरा आईटी के कैरियर्स में आपको बताता चलूँ, अगर आईटी के कैरियर्स भी हर फील्ड में, इवन अगर वो फील्ड जो है आईटी से रिलेटेड नहीं है उधर आईटी चाहिए होगी। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं तो वहाँ पे हमें सिस्टम बनाना है आईटी का। तो आईटी में मतलब गुजारा नहीं है, आप ये समझें कि इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, हर जगह है। दैट्स इट। एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा, अगर कोई ये रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क होता है कि कोई डिसीजन बंदा ले, अगर गलत हुआ है तो उस पर रिग्रेट ना करे, मूव ऑन करे। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है किसी ने? ये एप्पल फ़ोन जो है, स्टीव जॉब्स, ये स्टीव जॉब्स और ये जो अमेज़ॉन का फाउंडर है जेफ बेजोस, ये लोग कहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना दें। मतलब ये कहते हैं कि काम करें। आई एम सॉरी, मैं भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वैसे तो ये अभी कंट्रोवर्शियल हो गई यहाँ पे बात। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कहते हैं कि आपको कोई भी काम करना है, एक रिसर्च प्रपोजल बनाएं, आइडिया प्रॉब्लम सोचें कि यार ये दुनिया में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ले आएँ बस। अच्छा, ये यहाँ पे एक मज़े की बात, ये डे वन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता है कि हम जब भी कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, किसी भी नौकरी में आते हैं, तो पहले दिन हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। हम किसी स्कूल जाते हैं, किसी कॉलेज जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, पहले दिन हमारे पास एनर्जी 100% होती है, बड़े एक्साइटेड होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। पहले दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। अगर आप देखें स्कूल में भी, आप देखें अगर आपने, जब स्कूल हम ज्वाइन करते हैं पहले दिन बड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ये कहता है, ये स्टीव जॉब्स और ये जो जेफ बेजोस था, ये कहता है कि हर डे को आप डे वन कंसीडर करें, हर डे को डे वन कंसीडर करें, ताकि आप उस हिसाब से सोचें। आप अंदाज़ा करें, ये इसने जो ये जो जेफ बेजोस है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, ये सर जिस बिल्डिंग में बैठता है ना, जिस फ्लोर में बैठ रहा है, वो उस बिल्डिंग का नाम उसने डे वन कर दिया है। अंदाज़ा करें। आप अपनी सराउंडिंग को ऐसे करें कि आपको डीमोटिवेशन आए ही नहीं। बाकी सिंपल है, दिस इज मतलब दैट्स इट, मतलब स्मॉल चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन, थैंक यू, दैट्स इट।